Hello friends. So today we are beginning with the last question of your this chapter, that is your chapter number 5, admission of partner. Last question, that is your question number 20. Meet, Jeet and Neil are the partners. There are 3 partners now and they are admitting the 4th one, right? Sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. The balance sheet of their firm as on 31st March 17 was as under. Capital account is given, general reserve is there, investment fluctuation reserve is there, workman compensation reserve is there, workman profit sharing fund is there, workman saving account is there, creditor is there. तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि this two are liabilities and we are not supposed to distribute the same, right? Then asset side पे building, machinery, investments, debtors, stock and cash are given. Fine. On the above date, they admitted Heer as a new partner on the following conditions. Meet sacrificed 1/8 share and Neil sacrificed 1/24 share. दोनों का sacrifice जो किया है उन लोगों ने वो हमें दे के रखा है. Fine. इसमें कोई ऐसा critical part नहीं है, right? In favor of Heer. Goodwill is valued at 60,000. Heer will bring her share of goodwill in cash. Fine. Market value of investments is 52,000, which is to be shown in the books. Claim for workman compensation is accepted at 18,000. Market value of machinery is 60,000. Market value of building is 126, which are to be brought in the books. Fine. Here will bring 50,000 as her capital in cash. चलो ये भी हमें दे दिया है कि हीर कितना लेके आएगी. The basic यानी I can say the best part of this particular question is your part 7. Capital of the partners shall be proportionate to their new PSR, taking Heer's capital as base. Now if you can remember, हमने ये 20th नंबर का क्वेश्चन है ना, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट प्रोबेबली. 17th नंबर के क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि भाई द ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल था उसको बेस लेते हुए उसके प्रपोर्शन से हमने नए पार्टनर का कैपिटल फाइंड करा था, राइट? वी फाउंड आउट द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर बाय टेकिंग द बेस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, राइट? But in this question altogether it is a reverse situation. What we are supposed to do is we are supposed to take the capital of new partner as a base and we are supposed to find out the capital of the old partner, right? And the necessary effect is to be given in the cash. वो तो फाइन, वो तो हमें पता ही है कि भाई एडजस्टमेंट्स कहाँ पे करने हैं, कैश और बैंक अकाउंट में करने हैं, राइट? सो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ हीर. इतनी चीज़ें हमें दे के रखी है क्वेश्चन में, राइट? सो व्हाट वी आर सपोज टू डू फर्स्ट इज, हमें सबसे पहले क्या करना है, वी आर सपोज टू जस्ट रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द सेम. मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखा है. आई हैव ऑलरेडी मेड अ फॉर्मेट ओवर हियर, सो you are also requested to make proper formats and then also you can start the question. So let's start calculating the sum by writing our very first step, that is by balance brought down. It will be 1,75,000 and 50,000, करेक्ट? ये मैंने और कुछ नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया है. And here in the cash account I'll be recording to balance brought down will be 26,000, करेक्ट? ये मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला पोर्शन दैट इज मैंने बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करे. नाउ लेट्स मूव अहेड. General reserve is there, 12,000 rupees. Then investment fluctuation reserve is there and workman compensation reserve is there. ये दोनों के बारे में हम देखें तो इन्वेस्टमेंट है 60,000, तो हमें इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी हुई है 52,000. सो लेट मी मेक अ प्रॉपर वर्किंग नोट एंड देन आई विल शो यू कैसे करना है. इन्वेस्टमेंट्स थे कितने के, अपने पास 60,000 के इन्वेस्टमेंट्स वर देयर, राइट? सो investments of rupees 60,000 were there, जिसकी मार्केट वैल्यू अब हो गई है 52,000. तो कैन आई से 8,000 का देयर इज अ लॉस.
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपने पास कितनी थी, 20,000 की थी, जिसमें से ये लॉस में कैरी डिडक्ट कर दूँ तो 12,000 विल बी वॉट, the reserve, right? So what I'll be doing is partners capital account, I'll be recording by investment fluctuation reserve in their old PSR 6,000, 4,000 and 2,000, करेक्ट, जो 12,000 फ्री रिजर्व्स बच गए वो। एंड और दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, डेफिनेटली बैलेंस शीट में मैं लिख दूंगी उसको, बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट्स, the value is now 60,000, right? Sorry, 60,000 नहीं, 52,000, right? चलो ये हो गया इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट। नाउ व्हाट आर द अदर रिजर्व्स दैट वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास कौन से रिजर्व्स बाकी बची है जो हमें अमॉन्ग्स द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एंड देयर इज अ वन मोर क्लेम ऑल्सो, क्लेम का पहले निपटा देते हैं, देन इफ एनी रिजर्व इज रिमेनिंग पेंडिंग देन वी विल डू दैट। क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट 18,000, रिजर्व 15 की है और क्लेम है 18 का, रिजर्व इज ऑफ 15,000 एंड क्लेम इज ऑफ 18,000, कैन आई से दैट इज अ लॉस ऑफ 3,000, करेक्ट, क्योंकि हमने तो 15,000 की रिजर्व रखी थी पर क्लेम हो गया कितने का, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम हो गया कितने का, 18,000 का, सो देयर विल बी अ लॉस दैट आई विल बी रिकॉर्डिंग इन माई रिवैल्यूएशन अकाउंट टू workman accident compensation claim 3,000, correct. Then we are having general reserve, so by general reserve again it will be 6,000, 4,000 and 2,000, nothing but whatever general reserve is given I have distributed the same. Now anything else left, no, it is done and there is no as such any fictitious asset, so वो भी हमें कुछ distribute नहीं करना है, so we will start calculating goodwill. Goodwill is valued at 60,000, he will bring his share, her share of capital goodwill in cash, so let's calculate the share of goodwill. गुडविल कितने की देके रखी है हमें क्वेश्चन में, goodwill given is 60,000, right? We have the goodwill of rupees 60,000. Now हीर का शेयर we don't have, right? हीर का शेयर हमारे पास नहीं है, so what we are supposed to do is we are supposed to find हीर्स share of goodwill. उसके लिए what I'll be doing is जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी करा हुआ है अकॉर्डिंगली ही मैं उसको करने वाली हूँ। There is मीत, जीत, नील and हीर, right? The old ratio given is 3/6, 2/6, 1/6, right? Now sacrificing ratio is also given, no, 1/8, right? मीत का is 1/8 एंड नील का इज आई सपोज कुछ 24th ऐसा कुछ दिया हुआ है, लेट मी रिकन्फर्म, या 1/24, राइट, 1/8 एंड 1/24 इज द रेशियो गिवन ऑफ नील, 1/24। कैन आई से मुझे डिनोमिनेटर सेम करना हो तो हियर आई एम सपोज टू डू व्हाट, इंटू 3, करेक्ट, सो इट विल बी 3/24 एंड 1/24, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 3:1। इतना हमें समझ में आ गया, करेक्ट, अच्छे से इतना हमें समझ में आ गया है। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज we have this sacrificing ratio with us, let's find out the new ratio as well and then I'll be doing this calculation of new goodwill, right? न्यू रेशियो भी हम फाइंड कर ही लेते हैं बिकॉज हमें न्यू रेशियो की भी आगे ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है एज गिवन फॉर द कैपिटल। चलो I am first finding about meat in it,
मीट ओल्ड रेशियो, एक मिनट मैं लिख ही लेती हूँ इधर, न्यू रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट. सो हियर मीट का क्या होगा, ओल्ड रेशियो वॉज 3/6 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3/24, right. So let me take an LCM of 48. You'll be getting the reason why I'm doing so. 48 आई एम टेकिंग एज एन LCM. तो यहाँ पे 48 करना हो मेरे को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. You can use the calculators. I have it with me and I'm using it only, right. So 48, so here it will be 8 6 24 and here it will be 6. अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो अच्छी बात है, यू कैन डू इट ओरली, अदरवाइज यू कैन यूज द कैलकुलेटर्स, राइट. सो इट विल बी 18/48. देन द नेक्स्ट पार्टनर इज जीत, आई सपोज. यस, जीत का तो एस एच 2/6 ओल्ड रेशियो ही, सेक्रीफाइसिंग कुछ है ही नहीं और मुझे डिनोमिनेटर 48 करना हो, सो इट विल बी 16/48. देन नील, द ओल्ड रेशियो इज 1/6 minus 1/24. If I want to keep the denominator 48, then 8 minus 2 comes to 6/48. Then here, what will be here का ratio? Definitely 3 plus 1, so 4/24. एंड इसको भी अगर मैं 48 के उसमें रखूँ, 48 LCM अगर मुझे चाहिए, तो इट विल बी system 8/48, right. So it is 18 is to 16 is to 6 is to 8. The new PSR is 18 is to 16 is to 6 is to 8. अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो सबको मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, राइट. सो आई कैन डू इट लाइक दिस, 9 is to 8 is to 3 is to 4. You can take the LCM of 24 as well. मैंने 48 लिया. You can take the LCM of 24 as well and you can do the sum. मैंने 48 लेके फिर simplify करा है. You can simplify the question. This is all mathematical things, so you can do it on your own, whatever way you find it comfortable, right. So this will be your new PSR, जिसका as of now कुछ नहीं करना है, but we will be doing it later on. यहाँ पे चलो मेरे को sacrificing ratio मिल गया है, तो what I'll be doing is I'll be writing the here is the share of goodwill first. So 60,000 into उसका क्या था भाई, 4/24, correct. So what will be the share of here 4/24 करने से, it has to be 10,000, correct. So what will be the journal entry over here, cash is coming in, right. So cash account debit, and here I suppose something is given regarding goodwill. Let us see that 60,000 here will bring her share of goodwill in cash, right. Here will bring her share of goodwill in cash, ऐसा हमें देख के रखा है. Here will bring 50,000 as her capital. Fine, चलो cash account debit 10,000. I was just checking it out. If nothing is left, then it is fine. 2 premium for goodwill account 10,000, and second will be premium for goodwill account debit. 2, who did the sacrifice, Meet's capital account. 2, Neil's capital account. 10,000 in the ratio of their sacrifice, that is 3:1, 7,500 and 2,500. Now let's just do the general ledger posting, right. So हम क्या करेंगे, ledger posting we will be doing by premium for goodwill 7,500 and 2,500. yes, तो कैपिटल भी लेके आई है. सो बाय कैश 50,000, इसी चीज़ की मैं कैश में भी एंट्री कर लूँगी.
Cash account maybe there will be entry, right? To Here's capital account 50,000 to premium for goodwill account 10,000, right? So इतना हो गया premium for goodwill and capital का portion is now done. चलो now what we are supposed to do is हमें जो जो question में दे के रखा है वो चीज़ों की हमें entries pass करते जानी है. चलो goodwill portion is done. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वाला पोर्शन हमने कर दिया है. वर्कमैन कंपेंसेशन इज ऑल्सो डन. नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 60,000. मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1,26,000 विच आर टू बी ब्रॉट इन बुक्स. तो चलो फटाफट से हम मशीनरी और बिल्डिंग का इफेक्ट दे देते हैं. इवैल्यूएशन अकाउंट में आई विल बी गिविंग द इफेक्ट फर्स्ट बाय बिल्डिंग. जो भी हमारा प्लस माइनस हुआ है उसको लिख ले. 26,000 विल बी हियर. टू मशीन विल बी 20,000 ओवर हियर. नाउ इन केस ऑफ आवर बैलेंस शीट में क्या जाएगा? बैलेंस शीट बिल्डिंग it is 1,26,000 and machinery it is 3,000. मैंने और कुछ नहीं करा है, जो हमें बोला गया है उसको लिखा है. दैट्स ऑल. नाउ ये स्टेप भी अपना हो चुका, हमने सब कुछ कर लिया है. अब हमें क्या करना है? वॉट एवर वी आर लेफ्ट विथ इन द बैलेंस शीट, जो जो चीज़ें हमें बैलेंस शीट में से लिखनी रह गई है वो सारी की सारी चीज़ें हम लिख लेंगे. वी आर डन विद दिस बिल्डिंग एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट्स. नाउ डेटर स्टॉक इज लेफ्ट हियर. वी आर डन विद दिस 3 थिंग्स आर लेफ्ट. सो फटाफट से हम क्या करेंगे? वो जो चीज़ें लिखना रह गया है वो फटाफट से लिख लेंगे. चलो फाइन. देयर विल बी डेटर्स of rupees 40,000. There will be stock of rupees 64,000. There will be workman profit sharing fund of rupees 35,000. It was 35 only, no? Let me check. Yes, 35,000. And workman saving account of rupees 40,000. Creditors of rupees 23,000. Try to write the full forms, as I don't have enough space, so I have written the short forms. But I request you all that if you are keeping the habit of writing the full forms, it will be easier for you to maintain that practice in board exams, right? So हमने सब कुछ लिख लिया है. Everything is now done. फटाफट से क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस फाइंड करेंगे. अब हमें इतना तो पता चल ही गया है कि वेन एवर द क्लोजिंग कैपिटल का हमें जो भी एडजस्टमेंट दिया उसके लिए पहले रिवैल्यूएशन का तो निपटा ही देना है, राइट? सो 26,000. सो 3,000 विल बी लेफ्ट ओवर हियर, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग्स द पार्टनर. 2 पार्टनर्स. कैपिटल अकाउंट मीत, जीत एंड नील. So it will be 1,500, 1,000 and 500. So it will be by devaluation account 1,500, 1,000 and 500. यहाँ तक it is done, right? यहाँ तक हमने कर लिया है. Now what we are supposed to do? अब हमें क्या करना है? The main portion is now we are going to अंडरस्टैंड. अब हमें क्या दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में? ये देखें. कैपिटल ऑफ द पार्टनर शेल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग हीर्स कैपिटल एज बेस. अब हम नए पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके चल रहे हैं. अब मैं एक सिंपल सी वर्किंग नोट करूंगी एंड यू विल बी क्लियर विद द सेम कि कैसे ये सब हो रहा है कैपिटल का कैलकुलेशन. हीर का शेयर कितना था? Can I say Heer का share was 4/24? This is what Heer's share was, right? Heer का share was 4/24. Heer का share कितना था? हमने already find करा. It was 4/24. Heer brought 50,000 as her capital.
टोटल कैपिटल एक होगी जिसके कुछ पार्ट्स होंगे, राइट। 4/24th शेयर पे हीर इज ब्रिंगिंग 50,000 एज कैपिटल, देन हाउ मच फॉर वन? टोटल कितनी कैपिटल होनी चाहिए, सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे। यू विल बी गेटिंग 3 lakhs, करेक्ट। टोटल कैपिटल हैज टू बी व्हाट? 3 lakhs। समझना अच्छे से। For 4/24th share, if Heer is bringing 50,000 as capital, then how much for one? Total capital कितनी होनी चाहिए? You will be getting 3 lakh. उसमें से मेरे पास हीर की कैपिटल है, राइट। हीर्स कैपिटल इज ऑलरेडी देयर, तो वो मैं क्या कर दूंगी उसमें से माइनस। यू विल बी गेटिंग व्हाट? 2,50,000। इसको मुझे क्या बोला गया है क्वेश्चन में? प्लीज डिवाइड दिस इनटू योर new PSR, and our new PSR is 9:8:3 of Meet, Jeet and Neil. It is 9:8:3. So please distribute the same in the ratio of 9:8:3. कैलकुलेट करो, यूज करो इसको। 1,12,500, 1,37,500. I have got my closing capital by this method. This was one more method of finding the closing capital, right? That is 1,12,500, 1,37,500. अब इसको मैं लिख दूंगी पहले तो क्लोजिंग बैलेंसेस में। सिंपल सा है, अब तो ये मिल जाए फिर तो सिंपल हो गया क्वेश्चन है, सच कुछ नहीं करना है। और by balance carried down 1,12,500, 1,37,500. Here it is definitely 50,000 only. यहाँ पे तो कुछ changes as such नहीं है, right? अब the main thing, चलो ये तो मैम लिख दिया, ये यहाँ तक समझ में आ गया। क्लोजिंग कैपिटल हमने लिख दी 1,12,500, 1,37,500 एंड 50,000, जिसमें से ये हीर का तो इजी भी है कि 50,000 टोटल लिख लिया, बात खत्म हो गई। अब सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी मीत से। मीत का क्रेडिट साइड का टोटल आप लोग करो 1,12,750, इट विल बी 1,21,000, करेक्ट। 1,21,000 आया, उसमें से 1,12,500 माइनस करो। जो क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड करी है वो माइनस तो करनी पड़ेगी ना, देन ओनली यू विल बी गेटिंग सम बैलेंसेस ओवर देयर, राइट। कुछ यहाँ पे कुछ मिलेगा। क्या मिला देखो, you got 8,500 which you are supposed to adjust with what? To cash account, करेक्ट। ये हो गई मीत की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीत। Here it is 1 lakh and here it is 75,000 plus 4 plus 4, 8 and 1, 9. So and here it is 1 lakh. So definitely अपना डेबिट साइड का टोटल इज मोर, so 1 lakh, right? 1 lakh minus 75,000, 4,000, 4,000 and 1,000 करो, you will be getting something. By cash account you will be getting 16,000 over here, correct? आपको प्लस माइनस करना है और ध्यान रखना है मैं कहाँ पे क्या प्लस कर रही हूँ, कहाँ पे क्या माइनस कर रही हूँ। अगर आप ऐसे ही कॉपी करते जाओगे तो खत्म हो गया, नहीं समझ में आने वाला। प्लीज कीप योर माइंड ओपन एंड देन ओनली डू दिस सम्स। चलो फिर नील की बात करें तो 50,000, 57,000 you will be getting, right? 57,000, 57,000 minus 37,500 करो, you will be getting something 19,500, करेक्ट। मुझे यहाँ पे 3 बैलेंसेस में ले जाओ, मुझे कहाँ पे एडजस्ट करने हैं? कैश अकाउंट में एडजस्ट करने हैं, करेक्ट। सो इन माय कैश अकाउंट आई विल बी रिकॉर्डिंग by Meet's capital account 8,500, by
कौन था? नील था. नील्स कैपिटल अकाउंट 19,500. टू जीत्स कैपिटल अकाउंट 16,000. करेक्ट. इसका भी हम बैलेंस निकाल लें and then I'll be recording the capital accounts, not to worry. I know, I remember. 1,02,000. 1,02,000. Here you will be getting some balance. By balance carried down, you will be getting 74,000. And let's record the things into our balance sheet. Capital accounts. Meet, Jeet, Neil and Heer. Meet was 1,12,500. Jeet was 1 lakh. Neil was 37,500 and Heer was 50,000. So total of those is 3 lakh that we have already found in our working note. Here cash and bank it was 74,000. अभी भी फाइंड करा ना 74,000. 74,000. Just do the total. 4,16,000. 4 lakh. So this was also one of the method of calculating the capital of the partners. वो लोग आपको कुछ भी दे सकते हैं. ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके करना है तो उसके अकॉर्डिंग करना है. नए पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके करना है तो उसके अकॉर्डिंग करना है. वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन वी नीड टू कीप दैट इन माइंड एंड वी आर सपोज टू परफॉर्म द सम. आई होप यू आर क्लियर विद द सेम. थैंक यू.